اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے دوستو، آج 29 صفر 1442 ہجری 17 اکتوبر 2020 عیسوی، 1 گتے کارتک 2077 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے صدائے حق کا پروگرام سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی مسئلے کی جانکاری نہ ہو تو کسی جانکار سے پوچھ لیا کرو۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا نمبر ہے 041 590 239، پرانا ہی نمبر ہے اسٹوڈیو کا۔ آپ اس پر کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور سوالات کر کے جوابات پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پروگرام 2 فیس بک ID پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک NID آپ سرچ کریں گے تو ہمیں وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے سوالات لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جنک نندنی FM، یہ فیس بک بھی چالو ہے، اس میں صرف آپ آواز سن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، یہ پروگرام 1 رمضان المبارک 1442 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر روز نئے نئے علماء کرام کے نئے خطابات آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور زیادہ اسلامی معلومات حاصل کر سکیں۔ اور سنیچر کے دن آپ کے سوالات اور جوابات کا پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ آپ کے من میں یا آپ کے گاؤں گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو اس کے بارے میں آپ سوالات کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا سارا پروگرام جنک نندنی FM کے فیس بک ID پر موجود ہے اور اس پر پیش کیا جاتا ہے، اور ہر پروگرام کا YouTube چینل بھی بنایا جاتا ہے جو صدائے حق کے نام سے ہمارا YouTube چینل ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو اپنے وقت کے حساب سے سنیں، اور جس عالم کا خطاب جس موضوع پہ سننا چاہتے ہیں رمضان المبارک سے اب تک، اور جب تک انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پروگرام چلتا رہے گا تب تک کے سارے لوگوں کی تقاریر اور خطابات اس میں موجود ہیں۔ آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں، ان کو آپ موقع پر وقت نکال کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آج کا نمبر ہے نیپال کے لیے 041 590 239، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ نیپال سے باہر کے بھائیوں کے لیے شروع میں آپ 00 977 41 590 239 اتنا جوڑیں گے تب باہر سے ہمارے پاس آواز آ سکتی ہے۔ بہت سارے بھائی فیس بک پر جڑ گئے ہیں۔ محمد صغیر عالم صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے شیخ صاحب؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ دوسرے بھائی ہیں رئیس شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
एजाज़ अहमद, ओके। ये सारे भाई हमसे जुड़ गए हैं और इनसे गुजारिश है कि बेहतरीन सवालात करें ताकि आपको ख़ुद फ़ायदा हो और सुनने वालों को भी फ़ायदा हो। 041 590 239 ये नंबर स्टूडियो का है। इस पर आप कॉल करके हम तक अपने सवालात पहुंचा सकते हैं। रईस शेख, ट्रीटमेंट में दारू का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए, दारू जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा नहीं रखा है। हाँ, अलबत्ता बाज़ अंग्रेज़ी दवाओं में कुछ मात्रा दारू का या शराब का मिलाते हैं तो उस पर शराब का इतलाक़ नहीं होता है, बल्कि उसे इलाज, उसे दवा कहते हैं। तो इसलिए अहले इल्म ने उसको जायज़ करार दिया है। लेकिन मुतलक़न दारू पीना या शराब पीना और कहना कि हम इलाज के लिए कर रहे हैं तो उससे भी बेहतर इलाज है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ता जिन भाइयों ने व्हाट्सएप पर सवालात भेजे थे, वक्त की क़िल्लत के बिना मैं उनके जवाबात नहीं दे सका था, तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सारे सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग बेहतर से बेहतर सवालात करें और उन सवालात के जवाबात पाने की कोशिश करें। पहला सवाल इस हफ्ते का है कि चोरी की सज़ा क्या है और कितने में हद है, कितने में सज़ा है। अब्दुल जलील रौथट, कतर। जवाबन अर्ज़ है, सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हुदूद व सज़ाएँ इसलिए मुकर्रर की हैं ताकि मुआशरा, सोसाइटी और मुल्क फसाद और बर्बादी से महफूज रहे। उन्हीं हुदूद और सज़ा में से चोरी की भी एक सज़ा है, जिसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर समात फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 38 कि चोर और चोरनी, चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। ये किस चीज़ के बदला है? ये उस चीज़ के बदला है जो वो लोग उन लोगों ने किया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा है और अल्लाह इस गालिब है और हिकमत वाला है। इस आयत से पता चला कि चोर और चोरनी का हाथ काटना चाहिए, लेकिन अहादीस में इस आम आयत की तखसीस आई है कि कहाँ तक चोर का हाथ काटा जाए और किन शुरूत की बना पर चोर का हाथ काटा जाए। तो उन शुरूत की तरफ मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ। पहली शर्त है कि चोर मुकल्लफ हो। चोर मुकल्लफ हो। मुकल्लफ किसको कहते हैं? कि वो बालिग हो, छोटा बच्चा ना हो, वो बालिग हो, आकिल हो, मजनून ना हो, पागल ना हो, मुख्तार हो। मुख्तार का मतलब होता है कि कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, पिस्तौल ले रहा हाथ में और कह रहा है कि तुम चोरी करो नहीं तो गोली ठोक देंगे। तो यानी उसके अपने इख्तियार से उसने चोरी किया है, चाहे वो आदमी मुस्लिम हो या जिम्मी हो। जिम्मी कहते हैं उस शख्स को, उस गैर मुस्लिम को जो मुस्लिम मुल्क में अमान के साथ रहते हैं, एक समझौता के तहत, एक संधि के तहत कि हाँ हम आपके मुल्क में रहना चाहते हैं, हम आपको जिजिया देंगे या बगैर जिजिया करेंगे। तो उस शख्स पर ज़रूरी है कि वो उस मुल्क, इस्लामी मुल्क के तमाम क़वानीन को माने। तो ऐसे शख्स को जिम्मी कहते हैं। तो ये पहली शर्त हुई कि वो चोर मुकल्लफ हो। दूसरी शर्त यह है कि वो माल खुफियतन लिया हो, यानी चुरा करके लिया हो, छुपा करके लिया हो, दिखा करके नहीं लिया हो या जोर ज़बरदस्ती ने लिया हो, तो फिर उसका अलग मामला है। तो चोरी की तारीफ ही होती है कि अखजुल माल खुफियतन, कि माल को लेना खुफिया तौर पे, खामोशी तौर पे छुपा करके। तो ये दूसरी शर्त हुई। तीसरी शर्त है अन यकूनल माल फी हिर्जिन,
कि वो माल महफूज जगह में हो, वो माल महफूज जगह हो। जिस माल को महफूज रखने की जगह बनाई जाती है वहां से चोरी किया हो। मिसाल के तौर पर धान रखने के लिए कोठी होती है, उस कोठी में उसमें से चुराया हो। अब कोई सोना चांदी कोठी में नहीं रखेगा, उसको तिजोरी में रखेगा या पेटी में रखेगा। तो सोना और चांदी को तिजोरी से चुराया हो या पेटी से चुराया हो, और धान चावल कोठी में से चुराया हो, तो उसको हिर्ज कहते हैं, उसको हिर्ज कहते हैं। चौथी शर्त है कि इन शुभा उसमें कोई शुभा ना पाया जाता हो, कोई शुभा ना पाया जाता हो। वो चोर एक न समझे कि मैं सोचा कि ये मेरा माल है, बकरी चुरा ले तो सोचा कि मेरी ही बकरी ऐसी भी थी इसलिए मैं इसको ले आया अपने घर। तो यहाँ शुभा न पाया जाओ, शुभा नहीं हो, किस चीज का शक शुभा ना हो। और ये काजी के ऊपर है कि ये सब तहकीकात करे, सब शुरूत पाए जाए उसके अंदर, तब जाकर के उस पर हद नाफिज होगी। और एक शर्त है, छठी शर्त, पांचवी शर्त, कि वो माल मुहतरम हो, इज्जत वाला माल हो, जिसकी इज्जत की जाती है। अब शराब है, शराब की कोई इज्जत नहीं है। इसी तरीके से और भी उसी तरह से हराम चीजें हैं, तो वो हराम चीज अगर चुराया है तो ऐसे शख्स का हाथ नहीं काटा जाए, वो माल मुहतरम हो, इज्जत वाला माल हो। छठी शर्त है कि ये पहले ही गुजर गई है कि वो चोर मुख्तार हो, यानी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं किया गया। छठी शर्त सुन लें, ये सबसे अहम शर्त है कि निसाब तक वो माल पहुंचा हुआ हो। निसाब, ये ज़कात वाला निसाब नहीं है कि 20 मन धान हो तो हम 1 मन देंगे, या सोना चांदी इतना हो तो उसमें ये ज़कात है तो पैसा इतना हो, नहीं। इसका निसाब अलग है, चोरी का निसाब अलग है। वो क्या है? रुबअ दीनार, दीनार का चौथा हिस्सा। दीनार पहले चलता था, सोने का सिक्का होता था, तो उसका चौथाई हिस्सा अगर किसी ने चोरी किया है तो उसका हाथ काटा जाएगा। अब मैं इसकी तफसील बयान करूं कि दीनार किसको कहते हैं, कितने आजकल उसका वजन कितना होता है। तो अहले इल्म ने कहा है कि 1 दीनार आपको 4 ग्राम और 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा होता है। 4 ग्राम और 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा होता है ये 1 दीनार। उसका चौथा हिस्सा अगर किसी ने चोरी किया तो उसके चौथा हिस्सा कितना होता है? 1 ग्राम, वो तो हो गया 1 दीनार 4 ग्राम और ग्राम का चौथा हिस्सा। और रुबअ दीनार कितना होता है? 1 ग्राम और चौथाई हिस्सा का चौथा जुज़, चौथाई हिस्सा का चौथा जुज़। तो जो भी माल चुराया है चोर ने, उन सारी चीजों को हम इसी पर लागू करेंगे कि उन सामान की कीमत 1 ग्राम और चौथाई हिस्सा के चौथा जुज के बराबर सोने की कीमत को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अगर पहुंच गया तो उसका हाथ पहुंचा, तो फिर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो ये एक तराजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया है, एक मियार बना दिया है कि दीनार का चौथा हिस्सा अगर किसी ने चोरी किया तब उसका हाथ काटा जाएगा। अभी के हिसाब में, हमारे नेपाली रुपया के हिसाब में, आज का टाइम, आज जो 17 अक्टूबर है 2020, इसके हिसाब से सोने की कीमत 1 ग्राम की 8,013 रुपया 11 पैसा है। आज का रेट 8,013 रुपया 11 पैसा 1 ग्राम का, 1 ग्राम का। और रुबअ ग्राम का, यानी ग्राम के चौथाई हिस्सा का हो गया कितना? 2,327 रुपया। इन दोनों को मिला करके 10,016 रुपया 38 पैसा हो गया किसका? 1 ग्राम और रुबअ ग्राम का, 1 ग्राम और रुबअ ग्राम का। तो इस हिसाब से अगर किसी ने मसलन आज का रेट है सोने का कि 8,000, 1 ग्राम का 1,311 रुपया 1 ग्राम का, और रुबअ ग्राम का 2,003 रुपया है। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 10,016 रुपया 38 पैसा हो जाता है। इस हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से, रुबअ दीनार सोने की कीमत हो गई कितनी? 3,130 रुपया। रुबअ दीनार की कीमत हो गई 3,130 रुपया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हो सकता है कि इस हिसाब में कोई गड़बड़ी भी हो, आप लोग इसको हिसाब कर सकते हैं, और मुझको लग रहा है कि यहाँ गलती हुई है इस हिसाब में। तो
अगर हम मानते हैं कि 1 ग्राम की कीमत 8,013 रुपया है, तो गोया के रुबो ग्राम की कीमत हो गई 2,003 रुपया। तो इस हिसाब से हमारे ख्याल से कि 9,000 या 10,000 के बीच में इस तरह से होगा। आप लोग आज मिला सकते हैं और उसको कर सकते हैं आप। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये 6ठी या 7वीं शर्त हो गई। एक और शर्त है कि चोर को मालूम होना चाहिए कि चोरी करना हराम है, चोरी करना हराम है। और अगर उसको मालूम न हो कि चोरी करना हराम है तो फिर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। इसी तरीके से हमने पहले बयान किया कि चोरी क्या हो खुफिया तौर पे, यानी छुपा करके चोरी किया, अगर दिखा करके चोरी किया या गसब किया या छीन लिया या लूट लिया तो फिर उसका अलग मामला है। ये सारी शुरूत चोरी के चोर के हाथ काटने में है। अब चोरी कैसे साबित होगी, इसके लिए क्या है शरीयत में? तो चोर खुद से इकरार करे कि उसने चोरी किया है तो इससे भी लागू हो जाएगा कि वो चोर है। या 2 आदमी, अच्छा इंसान, झूठा ना हो, शरीफ इंसान, नेक इंसान, उसने गवाही दी कि फला आदमी ने चोरी की है, तो 2 आदमी की गवाही उस पर लागू हो सकती है। औरतों की गवाही हुदूद में काबिल कबूल नहीं है। अब आइए इन सारी चीज़ों की दलील क्या है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़तउ यदुस सारिक़ इल्ला फी रुबअ दीनारिन फसाइदा, कि चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा मगर दीनार के चौथे हिस्से में या उससे ज्यादा चोरी करे। ये हदीस आपको मिलेगी मुस्लिम शरीफ और उन्हीं का लफ्ज है ये 1684 हदीस नंबर, और बुखारी में है 6780-89, 6790 और 6791। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा नंबर खुला है 041-590-239 इस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने फेसबुक पर सवाल भेजा है कि रईस शेख यस, यानी वो जो मैं जवाब दिया उसके बारे में, अब्दुल्ला यादव हमसे जुड़े हैं दरभंगा से। रईस खान साहब, अच्छा शुक्रिया शेख साहब। मोहम्मद सगीर आलम, मेरे साथ एक साथी है, उसका सवाल है कि कब्र पर जाना और यहाँ भाटिया पढ़ना, क्या है ये भाटिया पढ़ना और फातिहा पढ़ना और दरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, कब्र पर फूल डालना सही है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका देंगे। सगीर साहब के 2 सवाल हो गए इसमें। पहला सवाल यह है कि कब्र पर जा करके वहाँ फातिहा पढ़ना, दरूद पढ़ना कैसा है? देखिए मेरे भाई, कब्र की ज़ियारत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर साथियों को, लोगों को, मुसलमानों को उभारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ूरुहा कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आख़िरह। हमने शुरू में कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब तुम क्या करो, कब्रों की ज़ियारत करो कि इससे आखिरत याद आती है, इससे आखिरत आती है। शुरू इस्लाम में जब सहाबा करम नए मुसलमान हुए थे तो कब्रों की ज़ियारत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था। ऐसा ना हो कि कब्र वालों ही से मांगना शुरू कर दे, जैसा कि आजकल बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं। तो मना किया था शुरू में। जब वो लोग पुख्ता हो गए, जब ईमान में और इस्लामी तालीमात में जब पुख्ता हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम ज़ियारत कर सकते हो। ज़ियारत के बारे में हम क्या करेंगे, तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप भला बतलाइए कि अगर हम किसी कब्र की ज़ियारत करें तो हम क्या करें, क्या पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुम सलफना व नहनु अला आसारिकुम यगफिरुल्लाहु लना व लकुम नसअलुल्लाहु लना व लकुम अल आफियत वस्सलामा। ये दुआ आपकी दुआओं की किताब जो होती है उस सब में, छोटी छोटी किताबों में आपको ये दुआ मिल जाएगी। यहाँ तक हम कर सकते हैं।
یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں، اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، دنیا کے کسی بھی کونا سے اموات کے لیے، مسلمانوں کے اموات کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قبرستان پر جانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں زیارت کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اب وہاں جا کر کے کوئی قرآن خوانی کرے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی درود پڑھے، اور وہ کہہ دے کہ ہم یہ مردوں کے نام سے پیش کر رہے ہیں، ہاں اگر وہ دعا کر رہا ہے مردوں کے لیے تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے سورہ فاتحہ کے جو شروع والی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک جو ہے یہ ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اگر یہاں تک پڑھ رہا اور اس کے بعد دعا میں مضبوطی لانے کے لیے درود شریف پڑھ رہا اور پھر اس کے بعد اموات کے لیے دعا کر رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یوں ہی فاتحہ اور درود پڑھ کر کے وہ وقف کر رہا ہے مردوں کے لیے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں ایک بات اور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیو دوستو، کہ عام مسلمانوں کی قبرستان میں آپ قبروں کی زیارت کریں تو آپ کا دل دہل جائے گا قبروں کے حالات دیکھ کر، اور یہ سوچ کر کے کہ کل ہمارا ٹھکانہ یہی ہوگا، تو دل دہل جاتا ہے، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مزاروں پر جو لوگ جاتے ہیں، جہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، جہاں اگربتی کی جو ہے خوشبوئیں رہتی ہیں، موم بتی کی روشنی رہتی ہے، قمقمے رہتے ہیں، چادر رہتی ہے، کیا کیا رہتی ہے، وہاں جا کر کے وہ جو کہیں گے کہ ہمیں قبرستان میں جا کر کے جو فائدہ ہو رہا ہے، آخرت کی یاد آ رہی ہے، وہاں یاد نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر کے قبروں کی زیارت کریں۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ قبروں پر پھول چڑھانا کیسا؟ قبروں پر پھول چڑھانا جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی عادت ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ قبر پھول چڑھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اوپر میں آپ چڑھا دیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ قبر کے اوپر اگر آپ سنگ مرمر سے بلڈنگ بنا دیں گے، ایئر کنڈیشن لگا دیں گے تو اس مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مردہ تو بیچارہ اپنے اعمال کے وجہ سے اگر نیک اعمال والا ہے تو جنت سے تو ویسی ہوائیں اور خوشبو آ رہی ہیں، اوپر سے ایئر کنڈیشن یا پنکھے لگا کر کے یہ سب کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا، اس کو صرف پہنچے گا تو آپ کی دعا پہنچے گی۔ اس لیے ان پر پھول چڑھانا اور چیزیں چڑھانا یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے قبرستان سے تو دیکھا کہ دو مردے کو سزا ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کو دو حصہ کیا اور دونوں قبر پر رکھ گھونپ دیا، گھسا دیا، اور کہا کہ جب تک یہ شاخ ہری رہے گی تب تک ان دونوں مردوں کو ثواب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہاں سوچنے کی بات ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں پھول چڑھانا چاہیے یا چادر چڑھانا چاہیے، یہ چڑھانا چاہیے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر کے خبر دی، یا ایک ان کا جو سواری تھا وہ بدک گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے، ان کو معلوم ہو گیا، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ عذاب میں ہے؟ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی نظر میں انہی کی قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، جبکہ ان کی نظر میں اولیاء ہیں تو پھر ان کو سزا کہاں ہو رہی ہے؟ وہ تو اللہ کی نعمت میں ہیں، تو ان پر پھول چڑھا کر کے، ان کو چادر چڑھا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ نصیر سراجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل رین السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج کاٹھمانڈو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، جو دھوکہ دے کے پیسہ لے کے لیے اسے جو دھوکہ دے کر پیسہ لے اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ میں سمجھا ہی نہیں سوال، تھوڑا پھر واضح کر کے سراج صاحب لکھیں کہ کیا ہے، اس ہندی میں اگر لکھیں تو اور اچھا ہے۔
हिंदी में लिखें तो बेहतर है, इसलिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक दो लफ्ज़, तो इसलिए मैं जवाब देने से कासिर हूँ। नसीर सिराजी जी बिल्कुल सही। ये मोहम्मद अबुल भाईजान, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या गैरों के ईद के दावत में जाना कैसा है? गैरों के यानी गैर मुस्लिमों के ईद में जो दावत दी जाती है उसमें जाना कैसा है? उसमें हम ना जाएं तो वही बेहतर है, उसमें हम ना जाएं तो वही बेहतर है, इसलिए कि उसमें ताउन होता है जो है शिरक बिदअत पर और गलत चीज़ों पे, तो उसमें हम ना जाएं, उसी में बेहतर है। हाँ, अलबत्ता बाज़ रवायात में आया है कि अगर वो तोहफ़ा तहाइफ दें तो उसे कबूल करना चाहिए, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो किसी देवी देवता पर चढ़ाया हुआ नहीं हो। अगर देवी देवता पर चढ़ाया हुआ हो तो वो बिल्कुल हराम हो जाएगा। इसके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू करने की ज़रूरत है कि उनके जो है तोहफ़े तहाइफ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत मुफस्सल तहक़ीक़ की ज़रूरत है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो लोग व्हाट्सएप पर सवालात भेज रहे हैं फिल वक्त या वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, अल्लाह के वास्ते वो उस पर न भेजे, इसलिए कि उसी मोबाइल पर हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है। मैं वो सुनने से या देखने से अभी कासिर हूँ, इसलिए आप लिख करके भेजें तो वो ज़्यादा बेहतर है, हम उसी का जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं जवाब दे पाएंगे। हेलो, हाँ हेलो, कौन भाई? हेलो, कोई भाई आए हुए थे लेकिन उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम कट गया। नसीर सिराजी साहब कतर से सवाल करते हैं कि जलाल हुसैन राजविराज जुमा की अगर एक रकात छूट जाए तो बाद में कितनी रकात पढ़ेंगे? इसका जवाब गुज़श्ता हफ्ता मैं दे चुका था, इसका जवाब मुफस्सल गुफ्तगू मैं कर चुका था, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बतला देता हूँ कि अगर कोई आदमी जुमा की नमाज में आया और इमाम के दूसरी रकात के रुकू में सर उठाने से पहले अगर वो मिला तो उसको एक रकात मिलेगी जुमा की। उसको चाहिए कि वो जुमा की एक रकात जो छुट्टी है वो पूरी कर ले, और पूरी करने के बाद जो है वो उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी, उसको जुमा का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ताखीर की वजह से न मिले अलग बात है, ये बात। दूसरी बात यह कि अगर वो शख्स जुमा में आया और इमाम दूसरी रकात का रुकू भी ख़त्म कर लिया, सजदा में है या बैठक में है, तो वो इमाम के साथ मिल जाए और इमाम के सलाम फेरने के बाद वो ज़ुहर की 4 रकात नमाज पढ़ेगा। उसकी जुमा की नमाज फौत हो गई, तो इस बात को याद रखें कि अगर इमाम जुमा के दिन इमाम को दूसरी रकात के सजदा में या बैठक में अगर पाया है कोई शख्स, तो उसकी जुमा की नमाज फौत हो गई। उसको चाहिए कि वो उठ करके सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद ज़ोहर की नमाज 4 रकात पढ़ेगा, 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैं मुफस्सल गुज़श्ता हफ्ता का आप प्रोग्राम सुन लें, इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा। मेरे भाइयों, 041 590 239 इस पर आप नेटवर्क में आकर के आप सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? अच्छा, मझौरा से। हाँ, क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? क्या दूसरा सवाल? हाँ हाँ, खाना खिलाने की ताकत ना हो तो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
ये थे मझौरा से, नाम नहीं बोले। इनके 2 सवालात थे। दूसरा सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैं समझा, अगर वो दोबारा कॉल किया तो ठीक है, नहीं तो जो मैं समझा उसको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। पहला सवाल है कि किसी की अगर जनाजा की नमाज छूट जाए, किसी की अगर जनाजा की नमाज छूट जाए तो वो क्या तन्हा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? हाँ, तन्हा पढ़ सकता है। अगर दफन कर दिया है मुर्दे को तो आप कब्र के पास खड़े होकर के आप जनाजा की नमाज पढ़ सकते हैं। ये साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगर मुर्दा मौजूद है, अभी ऊपर ही है, अगर दफन नहीं किया गया है तो आप उसको जहाँ जनाजा की नमाज पढ़ते हैं यानी कब्रिस्तान से अलग ले जा करके जिन लोगों को छुटा है वो लोग सफबंदी करके उस पर जनाजा की नमाज पढ़ेंगे। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी मिट्टी छूट गई, हम मिट्टी देने जा रहे हैं। किसी से पूछिएगा गांव घर में, भाई कहाँ जा रहे हैं? तो फलां आदमी फौत हो गया, हम मिट्टी देने जा रहे हैं। अरे भाई, मिट्टी दे करके तुम क्या करोगे? ये कहो कि हम जनाजा में शामिल होने जा रहे हैं, जनाजा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जनाजा असल चीज है। मिट्टी तो जो लोग मौजूद है वो तो देंगे ही, मिट्टी देंगे ही। तो इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि हम जनाजा में शरीक होने जा रहे हैं और जनाजा में जो दुआ है वो दुआ करेंगे और वहां से रुखसत होंगे। ये पहला सवाल था इनका। दूसरा सवाल है इनका, दूसरा सवाल जो मैं समझा कि एक गरीब आदमी है और उसको बच्चा हुआ और वो अकीका करने की सलाहियत नहीं रखता है, यहाँ तक तो मैं समझा, उसके बाद मैं समझ नहीं सका। तो देखिए, जो गरीब फकीर इंसान है वो खुद उनके खाने के लिए परेशान हाल है, वो क्या अकीका करेगा? अकीका एक सुन्नत है, इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शोहरत के लिए, नामवरी के लिए सूद पर कर्जा लेकर के या घरारी बेच करके, जमीन बेच करके माशाअल्लाह जो है अकीका करते हैं और पूरे गांव वालों को खिलाते हैं। और बहुत सारे जगहों पे डीजे बजाते हैं, रात में पर्दा चलाते हैं। अब पर्दा बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फिल्म में रख करके और वो जो है प्रोजेक्टर में ले करके और पर्दा लगा करके फिल्म चलाते हैं। और क्यों ऐसा किया? तो भाई हमारे बच्चे का जो है अकीका है आज, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो ये सारे खुराफात जो है चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खुराफात जो शिर्क तक पहुंचाने वाला है वो है क्या? बच्चों के छठे दिन या 5 छठियार के नाम से जो लोग करते हैं मुस्लिम में, ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के लिए कतई जायज नहीं है। और अक्सर मुस्लिम घरों में ये चीज देखी गई है कि उसमें 2 4 10 आदमियों को दावत देंगे और उसमें मछली का होना जरूरी है, उसमें ये करेंगे, उसमें ये करेंगे, वो करेंगे। ये कतई जायज नहीं, ये हराम है बिल्कुल। और अगर किसी देवी देवता के नाम पर अगर वो कर रहा है तो ये शिर्क अकबर हो जाएगा और वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ से सुन रहे हैं। और आप से कितना नंबर है? 041 5 90 239। इस पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस पर आप सवाल कर सकते हैं और आप इसका जवाब पा सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जवाब पाने के लिए आप लोग कोशा रहें। मेरा टाइम भी तकरीबन 10-15 मिनट बाकी है सिर्फ, इसलिए आगे मैं चलता हूँ। जो गुज़श्ता हफ्ता जो सवाल आया था उसमें से दूसरा सवाल है, शराब पीने वालों की सज़ा क्या है? क्या शराब पीने वाले रिश्तेदार या पड़ोसी से कहाँ तक ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? एजाज कबाड़ी, महेंद्र नगर। जवाबन अर्ज है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि हज़रत अली ने कहा अब्दुल्ला बिन जाफ़र से, कुम फजलिद हो, कि अब्दुल्ला तुम खड़े हो और जो शराब पिया है उसको कोड़ा मारो। तो उसको फजलदहु अलीउन यऊद हत्ता बलग 40। तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र ये कोड़ा मारते थे और हज़रत अली गिनते थे यहाँ तक कि 40 हो गया। तो आपने फरमाया कि अमसिक, कि रुक जाओ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 व जलद अबू बकर 40 व उमर 80, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 कोड़े मारे और अबू बकर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 कोड़े मारे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी 40 कोड़े मारे और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 80 कोड़े मारे। वो कुल्लुन सुन्नतुन, और हर एक सुन्नत है। देखिए कोई इख्तलाफ नहीं।
हर एक सुन्नत है, वहाज़ा अहब्बु इलैया, और ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। मुझे याद आ रहा है कि इसके बारे में कोई कौली अमल नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौली हदीस नहीं है कि कितने मारा जाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम को बुलाया और कहा कि शराबी को कितनी सज़ा दी जाए। तो सब किसी ने कुछ कहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 80 कोड़े मारा जाए। क्यों? इसलिए कि वो शराब पी करके गाली बकता है, तोहमत लगाता है, इधर उधर करता है, तो उसको जो है 80 कोड़े लगाना चाहिए। तो वही मुकर्रर हो गया है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से। ये हदीस आपको मिलेगी मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1707, अबू दाऊद हदीस नंबर 4480। तो मेरे भाइयों, इससे पता ये चला कि सहाबा कराम का इत्तेफाक हो गया कि शराबी की सज़ा 80 कोड़े हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से। सवाल का दूसरा हिस्सा है कि शराबी के साथ ताल्लुकात रखें कि नहीं रखें। तो जवाबन अर्ज़ है कि शराबी कबाबी के साथ ताल्लुकात न रखना ही बेहतर है। हाँ, अलबत्ता उसको नसीहत करने के लिए हमें चाहिए कि उसके पास जाएं और इत्मीनान से, नरमी से उसे नसीहत करें। जब वो नशा में न हो तो इंशाअल्लाह तबारक ताला नसीहत तो सुनेगा, और अगर न सुने तो हमने अपना हक अदा कर दिया, हमने अपना हक अदा कर दिया। अब्दुल्ला यादव ये दरभंगा से कह रहे हैं कि वित्र की नमाज में हाथ उठाकर दुआ करना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। वित्र की नमाज में हाथ उठाकर दुआ करना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी दुआ में हाथ उठाकर दुआ करना ज़रूरी नहीं। ये दुआ करना, हाथ उठाना, ये दुआ के आदाब में से है और कबूलियत के असबाब में से एक सबब है। तो अगर आप वित्र की दुआ हाथ उठाकर कर रहे हैं तो वो बेहतर है, हाथ बेहतर है। मेरे भाइयों दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गया है मोबाइल में, हो सकता है कि कहीं प्रोग्राम ख़त्म करना पड़े या क्या। तो टाइम भी तकरीबन 6-7 मिनट है। एक और सवाल जो आया था व्हाट्सएप पे कि दफन के बाद कलमात लिख कर रखते हैं, या कहाँ तक दुरुस्त है? शकील अख्तर कतर। जवाब, ये एक नई बिदअत है, ये एक नई बिदअत है जो कुछ लोगों ने पैसे कमाने का नया जरिया तलाश किया है। और हैरत की बात है कि ट्रेन के टिकट की तरह कब्र में भी रखे जाने वाले टिकट की भी कीमत होती है। कोई टिकट 500 रुपये का होता है, कोई 1000 का होता है, कोई 200 रुपये का होता है। जैसा इंसान होता है माली एतबार से, उसी तरह टिकट बना कर ऐसा करना के लिए भलाई और बेहतरी है। मेरे भाइयों दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के बिना पर हमारा ये थोड़ा सवाल छूटा, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, फेसबुक पर ख़ास करके। तो ये सवाल हो गया। तो इस तरह से टिकट कब्र में रखना ये क़तअन जायज़ नहीं है। चौथा सवाल है कि मरने के बाद पंजुम या चहल्लुम का खाना खाना कैसा है, और ख़ासकर मरने वाले की बड़ी बेटी पहला भोज करेगी, तो क्या इस्लाम में ऐसा करना सही है? शकील अख्तर कतर। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो अजीब व गरीब बात है, अजीब व गरीब बात है। मर भी गया और ऊपर से उससे भोज भी खाया जा रहा है, दुख भी हुआ और ऊपर से अरे भोज या भात या मिठाई वगैरह ये तो खुशी के मौका पर किया जाता है। वो मर गया, इसमें क्या खुशी है? देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, इस पंजुम और चहल्लुम के बारे में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली, जो मैं गुज़श्ता हफ्ता भी बयान किया था ये हदीस, जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कुन्ना नउद्दुल इज्तिमा इला अहलिल मय्यित व सनीअत अत्ताम बाद दफनिही मिनन नियाहा, कि हम लोग यानी सहाबा कराम मैयत के घर इज्तिमा होना, इकट्ठा होना और उनके दफन के बाद खाना बनाना, ये नियाह ज़माना जाहिलियत के कामों में से हम इसको शुमार किया करते थे। ज़माना जाहिलियत के कामों में से हम इसको शुमार किया करते थे। ये मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस नंबर 6905। इसकी सनद सही है, इसकी सनद सही है। तो इसमें चहल्लुम का भी आ गया, पंजुम का भी आ गया, नौवीं का भी आ गया, शराद भी आ गया, क्या क्या आ गया। ये तरीका जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है करते हैं और खाते पीते हैं। फतावा शामी में है,
ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور لأنه شرع في السرور لا في الشرور۔ فتاوی شامی میں زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکروہ، جب قدیم علماء مکروہ کہے تو یہ حرمت کے معنی میں ہو جاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میت کے گھر، میت والوں کا جس کے ہاں ہوا ہے اس کے گھر میں کھانا بنا کر کے ضیافت کرنا، مہمانی کرنا، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ یہ خوشی کے موقع پر مشروع ہے، نہ کہ غم کے موقع پر مشروع ہے۔ وہی بدعۃ مستقبحہ، اور یہ بہت ہی خبیث بدعت ہے، بہت ہی خراب بدعت ہے۔ وفی البزازیہ، یہ بھی حنفی کی اونچی کتاب ہے، وَيُكْرَهُ اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ولقراءة سورة الانعام اور الاخلاص۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن مرنے کے بعد پہلے دن کھانا بنانا، تیسرے دن بنانا، ایک ہفتہ بعد بنانا، کھانے کو لے کر قبر کے پاس جانا موسم میں اعتبار میں، شعبان کے موقع پر یا رمضان میں یا عید کے موقع پر، یا قرآن خوانی کرنے کے لیے دعوت دینا، نیک لوگوں کو اور قاریوں کو قرآن ختم کرنے کے لیے بلانا، یا سورہ انعام کی تلاوت کرنا یا سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہے، ساری چیزیں مکروہ ہے۔ یہ دیکھیے آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، رد المختار علی در المختار لابن عابدین، جلد نمبر 2 صفحہ 240۔ تو یہ حنفی کے چوٹی کے علماء بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جس حدیث سے یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ میت والے کے گھر کھانا چاہیے، یہ بھی میں تھوڑا بیان کر دینا چاہتا ہوں، سن لیں۔ میں اردو میں ہی سب ترجمہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک انصاری بیان کرتے ہیں، صحابی ایک جنازہ میں نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہیں اور کھودنے والے کو کہتے ہیں کہ پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، سر کی طرف سے کشادہ کرو۔ جب دفن کے بعد نکلے تو یہاں پوائنٹ کی بات ہے، فَاسْتَقْبَلَهُ دَاعِيُّ إِمْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے لوٹے تو ایک عورت کے دعوت دینے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ فلاں کے گھر آپ کی دعوت ہے، چلیے وہاں کھانا کھانے کے لیے۔ یہاں جو ہے امرأتن مشکات میں لکھنے والے کی طرف سے چوک ہوئی ہے اور امرأت ہی کہہ دیا ہے، استقبلہ داعی و امرأت ہی، اور بین السطور میں لکھ دیا اے المیت، یعنی مرنے والے کی بیوی نے دعوت دیا، بھیج کر کے بلایا کیا ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ تو یہ اصلاح کرنا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیو دوستو، اس لیے کہ مشکات تو خاص حدیث کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے امہات الکتاب سے لے کر کے اس میں جمع کیا حدیث۔ تو یہ ہوا، تو پھر جو ہے لمبی حدیث ہے، ثم وضع القوم، پھر جو ہے سب لوگوں کے سامنے کھانا رکھا گیا، لوگ کھانے لگے، اور ہمارے باپ دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ لقمہ اندر جا نہیں رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گوشت جو ہے یہ بغیر اجازت کے لیا گیا لگ رہا ہے۔ تو عورت کے پاس خبر بھجوایا، عورت آئی اور کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ہے فلاں عورت سے یہ بکری خریدی ہے اور اس کے شوہر کی بکری تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر اس نے بیچ دی ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تم یہ کھانا کس کو کھلاؤ؟ قیدیوں کو کھلا دو، قیدیوں کو کھلا دو۔ یہ حدیث کہاں ملے گی آپ کو؟ ابو داؤد حدیث نمبر 3332، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو دیکھیے کہاں غلطی ہوئی مشکات میں، اور اس سے وہ لوگ مردہ کے گھر کھانا جو ہے جواز نکال لیا ہے۔ مسند احمد میں واضح طور پر بیان ہے، فلما رجعنا لقینا داعی امرأۃ من قریش، کہ جب ہم لوگ لوٹے دفن کر کے تو ہم نے ملاقات کی قریش کی ایک عورت کے داعی کو۔ تو اس داعی نے کہا، دعوت دینے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ ان فلانتن تدعوک ومن معک الی طعام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 22509۔ اس خلاصے سے پتہ چلا کہ یہ جہلم کرنا اور پنجم کرنا، یہ 9 دن پہ کھانا کرنا، میلاد کرنا اور اس میں کھانا پکانا، یہ ساری چیز خرافات میں ہے، یہ بدعت میں ہے، جیسا کہ بدعت مستقبحہ کہا شیخ زین العابدین رحمہ اللہ نے۔ تو آپ اس سے دور رہیں، اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، ایک سوال رہ گیا ہے،
जो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा हफ्ता जवाब दूंगा, उसमें लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं टाइम उसी दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह, जो भी हमारे भाई सवाल किए हैं, जो हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके मकसद को पूरी फरमा दे, उनके नेक ख्वाहिशों को तो पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदा रख, कुरान और हदीस पर अमल करते हुए ज़िंदा रख, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। एक सवाल आ गया है फेसबुक पर मोहम्मद अबुल भाईजान का। सलाम शेख साहब, सिराज काठमांडू का सवाल, कोई आदमी अगर धोखा दे के पैसा या कोई सामान ले लें तो उसकी सज़ा क्या होगी, कुरान हदीस के रोशनी में बताएं। उसका सबसे बड़ी सज़ा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से है ही नहीं। तो धोखा देना ये मुसलमानों का काम नहीं है, धोखा देना ये मुस्लिम का काम नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग झूठ बोल करके, वादा खिलाफी करके, वादा करके नहीं करते हैं और धोखा से झूठ बोल करके ले लेते हैं पैसे और खाते पकाते हैं। तो ऐसा करना कतन हराम है और वो हराम का लुक़मा अपने मुंह में रख रहा है। तो और हराम खाने की क्या सज़ा है वो आप लोग जानते ही हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब।